Hello guys, today we will again discuss pharmaceutical jurisprudence. In that we will discuss about pharmacy and healthcare systems part 2, because in part 1 we have already seen how healthcare system has started working in India, and treatment was started in India with Ayurvedic system of medicines, then Unani system of medicines came in India, and later on when British came in India, they have started allopathic medicine of system. Now, moving on, when allopathic system of medicines has started in India, so as we all know, allopathic system of medicine deals with the drugs which are prepared or synthesized in laboratory. So in simple words, most of the drugs are, or almost all the drugs are nothing but chemicals, and chemicals, as we all know, these are a bit dangerous to our body. So when allopathic system of medicines started in India, when complex and potent organic compounds were introduced as a medicine, so अब ये तो पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो कि बॉडी में लेने हैं, तो इसके लिए कौन सा कंपाउंड कितनी मात्रा में बॉडी में जाना चाहिए, किस वक्त कितना, सो ऑल दीज should be well monitored. So to be administered these potent organic medicines with great care and standardized dosage forms, that is tablet, capsule, injection, किस फॉर्म में इसको देना चाहिए, वो कॉम्पेटिबल किस फॉर्म में है, और बॉडी में अगर पेशेंट के एज के हिसाब से इफ वी सी whether the medicine is for children's or young people or elderly people, so accordingly there are lots of factor to decide the dosage form. So ये potent drug होने की वजह से ये सब चीजें भी सोचनी पड़ी कि भाई ये किस तरह से, how to be administered with great care, and what should be the dosage form of that particular chemical. Then such formulation, अब ये इस तरह के जो फॉर्मुलेशन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, दिस फॉर्मुलेशन कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड एंड प्रिपेयर्ड इन स्मॉल स्केल बट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री विथ रिक्वायर्ड क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल मीन्स उसकी क्वालिटी को ठीक तरीके से मॉनिटर करके उसको प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज इंजेक्शन है, कैप्सूल है, टैबलेट है, ये ऐसी चीजें नहीं है, ये डोसेज फॉर्म्स कि आप 2-4 या 10-20 टैबलेट बना लो, 10-20 इंजेक्शंस बना लो. This is not possible at a small scale, right? Small scale means छोटा सा कम अमाउंट में इसका प्रिपरेशन हो, तो ये पॉसिबल नहीं था. ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब हम उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करें, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शंस हो. सो ये चीजें पॉसिबल थी ओनली when it will be prepared in industry, right? And if we are preparing it in large amount in industry, then we need to control the quality of your product also. Hence responsibility of pharmacist were increased. अब ये सारी चीजें जहन में रखनी थी और ये सारी चीजों पे कंट्रोल चाहिए था, तो फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते गई. सो टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द फिजिशियन एंड पेशेंट, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि फार्मासिस्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी हो गया, क्योंकि ये एलोपैथिक ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. आयुर्वेदिक है, यूनानी है और हर्बल ड्रग्स हैं. अगर ये मेडिसिन हैं तो बंदा अगर ले भी ले तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर एलोपैथिक ड्रग्स हैं, वी कैन नॉट टेक इट विथआउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर और विथआउट हैविंग अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दैट ड्रग. सो ये नॉलेज डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी कौन प्रोवाइड करेगा? सो इट्स अ फार्मासिस्ट who provides the information to the physician and as well as to the patient. And right now also, in advanced days also, these informations are provided to the doctors and patients by pharmacists only. So what information they will provide? They will provide all the information regarding use of that drug, कि एक particular drug है तो ये किस disease में use होना चाहिए, and what are their side effects, right, to control the health of the patient. Then responsibility और क्या बढ़ गई pharmacist की? Also pharmacist is also become responsible for quality control of the product, कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी क्वालिटी ठीक तरीके से बन रही है, उसको चेक करना. ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी
has came to the pharmacist shoulder. Then अब ये सारी चीजें हो गई, so distribution should be restricted with pharmacist only. अब ये सारी चीजें हैं, अगर कंट्रोल करनी है तो ये ड्रग कोई भी डिस्पेंस ना करे, कोई भी प्रिपेयर ना करे, कोई भी किसी को दे ना दे, तो ये सब एक्टिविटीज should be restricted to pharmacist only. Means only pharmacist should have a right to prepare the medicine as well as to dispense the medicine. So इसके लिए एक कानून बनना जरूरी था. There were law was required to control the distribution and distribution should be restricted with pharmacist only. तो इसके लिए law required था. तो ये सारे requirements के लिए ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई इन 1963 और उसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स निकले इस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिसाइड किया. सम ऑफ देम आर इनलिस्टेड हियर. इन दिस कॉन्फ्रेंस दे हैव डिसाइडेड दैट फार्मासिस्ट वाज रिगार्डेड एज ड्रग एक्सपर्ट. उस वक्त कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि फार्मासिस्ट को ड्रग एक्सपर्ट कंसिडर करना होगा हमें. Then while physician as diagnosis and treatment, pharmacist drug expert होगा और physician या doctors जो है वो क्या उनका job क्या होगा, they will diagnose and treat the patient. Hence अब ये drug expert हो गया pharmacist. So इसलिए pharmacist drug expert है तो इसको education की जरूरत होगी to get all the knowledge regarding the chemical and drugs. Hence pharmacy education is framed accordingly so that he gets all the knowledge about the drugs. तो इस वक्त से फार्मेसी एजुकेशन का सिस्टम जो है तो इंप्लीमेंट हुआ. उससे पहले तक के लोग इतना कोर्स वगैरह नहीं करते थे टू बिकम अ डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म. ये जब ये रिकमेंडेशंस आए कि फार्मासिस्ट शुड बी रिगार्डेड एज अ ड्रग एक्सपर्ट, तो अब ये ड्रग एक्सपर्ट कब कहलाएगा, जब ही विल हैव सफिशिएंट नॉलेज. तो वो नॉलेज प्रोवाइड कैसे होगी, थ्रू एजुकेशन. सो हेंस फार्मेसी एजुकेशन शुरू हुआ इसी को जहन में रखते हुए, एंड दैट ही शुड गेट ऑल द नॉलेज अबाउट द ड्रग्स. नाउ-अडेज, अब अगर हम अभी की बात करें, नाउ-अडेज हेल्थ केयर सिस्टम इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ये जो पूरा सिस्टम है हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ गए, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, राइट. सो ये सारे चेंजेस टाइम टू टाइम हमेशा से होते आए हैं और ये चेंजेस ये सारी चीजों की वजह से होते हैं. इकोनॉमी की वजह से भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, सब पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो भी इसमें हेल्थ केयर सिस्टम में चेंजेस आते हैं. देन इवोल्यूशनरी चेंजेस इन फार्मेसी विल कंटिन्यू टू हैव इम्पैक्ट ऑन चेंजिंग हेल्थ केयर सिस्टम, राइट. Then there was one more conference in 1978, International Conference on Primary Health Care. ये WHO की तरफ से था एंड एम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, टू अचीव द गोल. उनका एक गोल था, वो गोल क्या था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD. हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, दिस वाज द मेन मोटो, राइट. अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें आई हैं, स्वच्छ भारत अभियान आया था. लाइकवाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये भी हुआ कि भाई हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने एक ये मुहिम चलाई थी, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 2000 AD? एज वी ऑल नो, शुरू में जैसे अभी हम ईयर इस फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं, 1978, 2020, 2019, 2018. सो कुछ ईयर्स जो है तो इस तरह से भी डिस्क्राइब होते थे. ये ईयर ही है 2000 AD. AD मीन्स एनो डोमिनी, और ये 2000 AD का मतलब ये होता है, एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस. ये क्रिश्चियंस ने ये डिसाइड किया था, आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस. सो 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस, मतलब जेसस का जो जन्म हुआ था उससे 2000 साल बाद तक ये हेल्थ फॉर ऑल का मोटो उनको अचीव करना था. सो दिस वाज इन दिस कॉन्फ्रेंस, व्हाट वर द कंक्लूजन्स? सो फर्स्ट कंक्लूजन वाज अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस
they have discussed about education. Pharmacy education should be there concerning prevailing health problems and method of identifying, preventing and controlling them. Then second उनका ये था health for all, ये अचीव करने के लिए promotion of food supply and proper nutrition. उन्होंने कहा कि भाई हर देश में, हमारे देश में स्पेशली इंडिया में ये चीज होनी चाहिए कि promotion of food supply, ये नॉलेज मिलना चाहिए और ये इंप्लीमेंट होना चाहिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगों तक के मिले सही फूड के जरिए से. देन प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एपिडेमिक डिसीज, जैसे इससे पहले भी, जैसा अभी कोरोना एपिडेमिक डिसीज चल रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे एपिडेमिक डिसीजेस आए हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए. देन प्रोविजनल ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, कि जो जरूरी ड्रग्स हैं उसका प्रोविजन क्या होगा. देन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन ड्रग्स, कॉमन डिसीजेस, इसका भी एक प्रोटोकॉल हो कि अगर किसी को सर्दी खांसी या इस तरह के कॉमन डिसीज होते हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका. देन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस, अब इम्यूनाइजेशन कैसे बॉडी का बढ़े उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इस तरह के कुछ पॉइंट डिस्कस किए उन्होंने. देन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, health professional means doctors, pharmacists, nurses and all that. Then national healthcare policy, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किया एंड दे हैव थॉट दैट दिस शुड बी थिंक एंड दिस शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रोमोट द हेल्थ इन नेशन. देन दिस रिपोर्ट वाज बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो कि एनी हाउ इंप्लीमेंट करनी ही थी, बट टू अचीव द गोल कि हेल्थ फॉर ऑल, ये जो गोल था उनका, ये अचीव करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत जरूरी था सोसाइटी को और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ये कंसिडर करना कि दिस फार्मासिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम. इफ वी डिस्कस इन टुडेज सिनेरियो, द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ academic pharmacist, industrial pharmacist, hospital pharmacist and community pharmacist. All these means pharmacist ये चार शोबे में, ये चार फील्ड में ही बटे हुए हैं इंडिया में, and all are directly or indirectly related to nation's health. जैसे if we talk about academic pharmacist, तो academic pharmacist means कॉलेज में जो pharmacist होते हैं, like our teachers, they are providing the knowledge about the medicines and healthcare system. Then industrial pharmacist, they are preparing the medicines. Then hospital pharmacist, they are treating, hospital pharmacist, they are dispensing the medicines in hospital to the patients and all that. Then community pharmacist, the drug stores, and जो community में जो pharmacist जो information वगैरह provide करते हैं camp through and all that, this. So ये चारों भी field pharmacist की जो है इंडिया में, ये सभी effectively work कर रहे हैं for the health of nations. Then pharmacists have an important role in areas such as prescription adherence. ये फार्मासिस्ट की जवाबदारी होती है कि जो भी मेडिसिन दे तो वो प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में ही दे, कोई भी जबानी अगर कोई दवा मांगे तो उसको एवं ही उठा के नहीं दे देना. देन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग जो आते हैं ड्रग स्टोर में, कंपनी में, तो उसको सही तरीके से स्टोर कर, अदरवाइज वो ड्रग जो है तो लॉस हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, राइट. देन ड्रग चॉइस, कि किस डिसीज के लिए कौन सा ड्रग सही है. देन ड्रग मॉनिटरिंग, कि ड्रग इंटरवल फ्रीक्वेंसी में दिया जाए, सही से वर्क करे. देन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन मीन्स ड्रग का इंफॉर्मेशन डॉक्टर को भी देना एंड ड्रग का इंफॉर्मेशन पेशेंट्स को भी देना. देन क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग. देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर हेल्थ एक्टिविटीज, ये सब फार्मासिस्ट के ही जिम्मे, राइट. क्योंकि R&D, नाउ द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट द फार्मासिस्ट, कि ये फार्मासिस्ट कब जो है तो वैक्सीन बनाते हैं कोरोना के अगेंस्ट. डॉक्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द फार्मासिस्ट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, R&D. Then pharmacist is responsible for ensuring that right patient is receiving right medicine in right dose for right condition in right dosage form at right frequency. Hence pharmacist is considered as integral part of healthcare system. PC has reconsidered the pharmacy education as D Pharm, and they have also introduced